Hello students, discuss number chapter integers and the next topic of integers is the properties of addition of integer. Okay, now we have learned about the properties of addition of integers. Okay, first one property is closure property. Let's suppose if a and b are a integer, if a and b are a integer, then a plus b is also integer. Okay, what is the closure property? If a and b are an integer, then a plus b is also integer. Okay, एग्जाम्पल फर्स्ट नंबर यानी कि क्या, जब जब a इंटीजर है और b भी इंटीजर है तो दो इंटीजर की एडिशन भी हमेशा क्या होती है, इंटीजर नंबर होती है. ओके, वी नो दैट वी नो अबाउट द इंटीजर. ओके, व्हाट इज द इंटीजर? द पॉजिटिव नेगेटिव प्लस 0. ओके, द होल नंबर्स and 0 is called as an integer. Here first example, let's suppose 8 and 9. Okay, this here 8 is also integer and 9 is also integer. Okay, here 8 9 belongs to I. Okay, this is the symbol of belong म्हणजे 8 और यहाँ पे 8 और 9 क्या है, इंटीजर है. तो 8 plus 9 is equal to 17. Okay, here 17 is also integer, also belongs to I. यानी कि क्या, जब एक फर्स्ट वन इंटीजर है और सेकंड वन भी इंटीजर है तो दोनों के एडिशन भी क्या होती है, इंटीजर होती है. ओके, दिस इज द क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर. ओके, what is the property? If a is an integer, a and b are an integer, then a plus b also integer. Okay, now second number property, commutative property. Okay, commutative property. Okay, if a and b is an integer, then a plus b is equal to b plus a is called as a commutative property. If a and b are integer and a plus b is equal to b plus a, this is a commutative property. This is a commutative property. What is the commutative property? Let's suppose a और b दोनों दो इंटीजर है और फर्स्ट मैंने क्या लिया, a के साथ में b के एडिशन ली, तो उनसे जो आंसर आएगा वही आंसर b के साथ a के एडिशन लेने पर आएगा. ओके, दिस इज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. यानी कि क्या, अगर मैंने a को पहले लिखा या b को बाद में लिखा या b को पहले लिखा तो भी दोनों में जो एडिशन में आंसर आएगा वो क्या होगा, सेम होगा. ओके, द एग्जांपल ऑफ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज फर्स्ट वन. लेट्स सपोज मैंने लिया 10 and 12. 10 and 12 is the integer. Okay, 10 and 12 is the integer. The addition of 10 plus 12 is equal to 22. Similarly 12 plus 10 also 22. Okay, यहाँ पे आने वाला दोनों जगह पे आने वाला आंसर क्या है, इक्वल है. ओके, यानी कि क्या 10 plus 12 is equal to 12 plus 10. Okay, this is the commutative property. Okay, this is the commutative property for addition. Okay, यानी कि क्या, एडिशन क्या करती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओबे करती है. ओके, व्हाट इज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? इफ a and b are integer, then a plus b is equal to b plus a. This is the commutative property. Okay, now next number property of an integers is associative property. Okay, yeah, associative law. Third number, associative property. If here given three numbers, if a b c are a
integer, then a plus b in a first bracket also with add with c, then it is also equal to a plus in bracket b plus c. Okay, what is the associative property? If a, b and c are an integer, then a plus in a second bracket b plus c is equal to a plus b प्लस सी. ओके, यानी कि क्या, अगर मैंने b के साथ c के साथ पहले एडिशन की तो और जो भी उनका आंसर आएगा उसकी एडिशन a के साथ की, उससे जो भी आंसर मिलेगा सेम आंसर a की पहले b के साथ एडिशन करने के बाद में उसकी एडिशन c के साथ भी की तो उससे जो आंसर आएगा वो भी क्या होगा, इक्वल्स होगा. ओके, दिस इज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. ओके, एग्जांपल देखते हैं. एग्जांपल 8, 9, 10 are a integer. Okay, 8, 9, 10 are a integer. Then 8 plus in second bracket 9 plus 10 is equal to 8 plus, first solve the bracket. Okay, 19 is equal to 19 plus 8 is equal to 27. Okay, now मैंने क्या लिया, पहले ब्रैकेट में 8 प्लस 9 की एडिशन की, उसके बाद में 10 ऐड किया तो 8 प्लस 9 इज इक्वल टू 17 प्लस 10 इज इक्वल टू 27. यहाँ पे आने वाला दोनों की जगह पे आने वाला आंसर सेम है. इसकी वजह से 8 प्लस 9 प्लस 10 इज इक्वल टू, इन फर्स्ट ब्रैकेट 8 प्लस 9 इज 10. It is the associative property. Okay, hence associative property obey in addition. Okay, यानी कि क्या, क्लोजर प्रॉपर्टी भी एडिशन सेटिस्फाई करती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी एडिशन सेटिस्फाई करती है और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी एडिशन जो इंटीजर नंबर की वो सेटिस्फाई करती है. ओके, नेक्स्ट नंबर एसोसिएटिव या आइडेंटिटी, एडिशन आइडेंटिटी. नेक्स्ट नंबर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ integer is additive identity. Fourth number, additive identity. Okay, what is the additive identity? Let's suppose कोई मैंने एक नंबर लिया, उसके साथ में एक कोई नंबर भी ऐड किया तो उससे आने वाला आंसर चेंज नहीं होगा, यानी कि जो पहले वाला नंबर लिया है वही आंसर आएगा. तो उस जो नंबर हमने उसमें ऐड किया है तो उस नंबर को हम क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी. ओके, इफ a इज एनी इंटीजर, if a is an integer then a plus 0 या 0 plus a also a, then 0 is called as additive identity of an integer. Okay, मैंने क्या लिया, if a is any integer then a plus 0 is equal to 0 plus a is equal to a. कोई भी नंबर अगर जीरो में ऐड किया जाए तो आने वाला आंसर वही नंबर आता है. देन 0 इज कॉल्ड एज एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर. ओके, हियर 0 is the additive identity. Example, first 10 plus 0 is equal to 0 plus 10. आने वाला आंसर क्या होगा, 0. तो 0 is additive identity. ओके, यानी क्या, कोई भी नंबर अगर मैंने 0 में ऐड किया तो आने वाला आंसर वही नंबर आएगा, इसलिए उस 0 को क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी. ओके, नाउ फिफ्थ नंबर प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर, एडिटिव इनवर्स. फिफ्थ नंबर प्रॉपर्टी ऑफ integer is additive inverse. Fifth number
एडिटिव इनवर्स। व्हाट इज द इनवर्स? लेट सपोज मैंने कोई नंबर के साथ दूसरा वाला नंबर ऐड किया, तो उससे आने वाला आंसर एडिटिव आइडेंटिटी होगा, उससे आने वाला आंसर एडिटिव आइडेंटिटी यानी कि 0 आएगा। तो जो भी नंबर मैंने ऐड किया है उस नंबर को क्या बोलते हैं हम? एडिटिव इनवर्स। ओके, एडिटिव आइडेंटिटी ऑलवेज यूनिक, but additive inverse is not unique. Okay, here first one, if a is an any integer, if a is an integer, then a minus, then in bracket a minus is additive inverse of given number। ओके, यानी कि क्या, लेट सपोज मैंने क्या किया, a के साथ में a माइनस की एडिशन की। लेट सपोज a प्लस इन ब्रैकेट a माइनस इज इक्वल टू a माइनस a इज इक्वल टू 0, या माइनस a प्लस a इज इक्वल टू माइनस a प्लस a इज इक्वल टू 0। आपको जो आने वाला आंसर है, जो भी आने वाला आंसर है वो क्या होगा? आपका एडिटिव आइडेंटिटी होगा। तो जो नंबर हमने ऐड किया है वो आपका क्या होगा? एडिटिव इनवर्स। ओके, हेंस माइनस a इज एडिटिव इनवर्स। Okay, here minus a is additive inverse. Now note, there is a important note. There is an important note. Additive identity always unique। additive identity always unique। यहाँ पे दो स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट। additive identity always unique and it is a 0 and it is 0। ओके, वो हमेशा क्या होगी? 0 होगी। उसके बाद में एडिटिव इनवर्स does not unique। additive inverse does not unique। okay, additive inverse does not unique। okay, here two important statement, additive identity always unique and it is always 0, additive inverse does not unique। okay, this is the important property of addition of an integer। now we have taken some example on this property। okay, first one, 13 plus minus 7। by using first rule of subtraction here, to make the second number first negative, 13 minus 7, because plus into minus is equal to minus, hence 13 minus 7 is equal to 13 में से 7 जाने के बाद में आंसर कितना आएगा? 6। this is the answer of given question। okay, now next number, minus 17 plus 6। here minus 17 plus 6, here first number, by using second rule of addition, first number is negative and second number is positive,
then take the subtraction between two numbers and give the sign of bigger numbers. ओके, जब आपको अल्टरनेटिव साइन मिलते हैं यानी कि क्या फर्स्ट नंबर अगर नेगेटिव है और दूसरा नंबर पॉजिटिव है या उसका फाइव सोर्स होगा तो क्या करेंगे, उन दोनों नंबर में हमको क्या करना है, सिर्फ सब्ट्रैक्शन करना है और सब्ट्रैक्शन के बाद भी जो भी इनमें से जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसके हिसाब से आपको साइन देना है. ओके, यानी कि क्या 17 यहाँ पे -17 का साइन माइनस है, 6 का साइन प्लस है, तो 17 में से 16 जाने के बाद आंसर आता है 11. ओके, 17 में से 16 जाने के बाद आंसर आता है 11. बट द बिग नंबर इज 17, जो बड़ा नंबर है उसके हिसाब से साइन देना है, यानी कि क्या यहाँ पे साइन कौन सा आएगा, माइनस. ओके, दिस इज द मेथड ऑफ सब्ट्रैक्शन. ओके, नाउ हम इसके दूसरे वाले एग्जांपल देखते हैं जो हमारे एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल के हिसाब से होंगे. ओके, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन उसमें लेते हैं हम -17 प्लस -30. यहाँ पे यह इन दिस क्वेश्चन first we have given the subtraction. Okay, here first number is negative, also similarly second number is a negative. First by the first rules of subtraction, जो आपको सेकंड नंबर है वो पहले किस में कन्वर्ट करना है, सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. आपको मालूम है प्लस इनटू माइनस आंसर इज ऑलवेज माइनस. ओके, लेट्स सपोज हमने लिया यहाँ पे 2 लिया इनटू -3 तो आंसर कितना आएगा, -6, यानी कि कौन सा साइन आता है, माइनस साइन आता है. ओके, सिमिलरली यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा. ओके, हेंस -17 -30. Why here taken a minus sign, because we know that plus into minus is equal to minus. Okay, अगर मैंने कोई एक नंबर पॉजिटिव लिया है और दूसरा नंबर नेगेटिव लिया है और उन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन लिया है तो जो आने वाला आंसर है वो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा. ओके, यानी कि क्या -17 -13 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो व्हाट इज द सेकंड नंबर रूल ऑफ एडिशन. सेकंड नंबर रूल्स क्या कहता है एडिशन में, दिस इज द फर्स्ट रूल. ओके, फर्स्ट रूल ऑफ एडिशन. एडिशन का फर्स्ट रूल क्या कहता है, व्हाट इज द फर्स्ट रूल ऑफ एडिशन, इफ द टू नंबर्स हैविंग सेम साइन. ओके, इफ द टू नंबर्स हैविंग सेम साइन then neglect their signs, taking the addition between two numbers. After addition give the common sign टू दी आंसर. ओके, यानी कि क्या, अगर आपको दो नंबर का साइन सेम दिया है तो पहले क्या करना है, उन साइन को निग्लेक्ट करके आपको उन दो नंबर के एडिशन करनी है और जो भी एडिशन आएगी उसको साइन में से जो भी कॉमन साइन आएगा उसके हिसाब से आपको साइन देना है. ओके, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो मैंने कौन सा कॉमन लिया, माइनस साइन कॉमन लिया. और 17 और 13 इन दोनों का साइन सेम है, इसके हिसाब से 17 और 13 की एडिशन होगी. 17 प्लस 13 इज इक्वल टू 30. दिस इज द आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन. ओके, यानी कि क्या, जब कोई दो, लेट सपोज आपको दो नंबर के साइन सेम दिए तो पहले क्या करना है, उन साइन जो है, जो दो नंबर का साइन है उस साइन को आपको कॉमन लेना है. उसके बाद में जो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर है इनकी डायरेक्ट आपको एडिशन करनी है और जो कॉमन साइन है उस एडिशन के सामने लिखना है. ओके, यानी कि मैंने क्या किया, 17 में 13 ऐड किया तो आपका आंसर आएगा 30 और उन दोनों में कॉमन साइन कौन सा आएगा, माइनस साइन कॉमन है. ओके, सिमिलरली मैंने लिया -17 प्लस 30. ओके, हियर वी have taken the alternate sign. Okay, by second number rule of addition, if the two numbers having different sign, then first subtract the two numbers from each other and give the sign of bigger numbers. Okay, यानी कि क्या, अगर आपको अल्टरनेटिव साइन या डिफरेंट साइन दो नंबर के बीच में दिया है, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस. ओके, इस तरह के क्वेश्चन में आपको अगर अल्टरनेटिव साइन दिया है तो पहले क्या करना है, उन दोनों नंबर की सब्ट्रैक्शन करनी है. जो भी सब्ट्रैक्शन आएगी उसको जो उन दोनों नंबर में सबसे बड़ा नंबर है उसके हिसाब से साइन देना है. ओके, यहाँ पे देखो 17 और 13, इन 17 और 13 की सब्ट्रैक्शन कितनी आएगी, 4. ओके,
17 और 13 की सब्ट्रैक्शन 4 आएगी, और सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर 17 है, तो उसके हिसाब से साइन लेना है। ओके, समझ में आया? यानी कि क्या, if the two numbers having different sign, then the addition of these two numbers first make the subtraction between two numbers and give the sign of big numbers। ओके, यानी कि क्या, जो दो नंबर है उन दो नंबर की जो सब्ट्रैक्शन है या दो नंबर का साइन डिफरेंट है, तो उसमें दो नंबर में आपको पहले सब्ट्रैक्शन करनी है। सब्ट्रैक्शन का जो भी आंसर आएगा उसको उसके पहले जो उन दोनों नंबर में सबसे बड़ा नंबर है उसके हिसाब से आपको साइन देना है। ओके, दिस इज द मेथड ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ गिवन इंटीजर। ओके, नाउ we learn the next find the additive inverse। next question find the additive inverse, find the additive inverse of given number। आपको जो नंबर दिए मैंने अभी बताया था, यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट लिख के दीजिए। ओके, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट नोट, एडिटिव आइडेंटिटी ऑलवेज यूनिक, यानी कि क्या, वो एक ही एडिटिव आइडेंटिटी चेंज नहीं होती, वो सिर्फ जीरो यानी कि जीरो ही होगी, उससे ज़्यादा अलग नहीं हो सकती, यानी कि क्या है, वो यूनिक है। बट आइडेंटिव इनवर्स ये यूनिक नहीं है, ये हमेशा चेंज होता रहता है, उस नंबर के हिसाब से चेंज होगा। बट जब आपको एडिटिव इनवर्स निकालते हैं तो एडिटिव इनवर्स जब आप कोई भी नंबर में ऐड करेंगे तो आने वाला आंसर हमेशा क्या होगा, जीरो ही होगा। जीरो के अलावा आंसर आया तो आपने एडिटिव इनवर्स जो उसमें कैलकुलेट किया है वो गलत है। ओके, लेट्स सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। फर्स्ट वन मैंने लिया 18। ओके, 18। अब ऐसा कौन सा नंबर है जो मैंने 18 में ऐड किया तो आने का आंसर कितना आएगा, जीरो आएगा। ओके, मैं उसको पहले क्या, मैं उस नंबर को क्या मानता हूँ, x मानता हूँ। ओके, लेट सपोज एडिटिव इनवर्स इज x। मैं क्या मानता हूँ, एडिटिव इनवर्स को x मानता हूँ। जब मैं 18 के साथ में x की एडिशन करता हूँ तो आने वाला आंसर क्या आएगा, जीरो ही आएगा। यहाँ पे हमेशा क्या आएगा, जीरो ही आएगा। क्यों जीरो आएगा, बिकॉज जीरो क्या है आपका एडिटिव आइडेंटिटी है। जीरो इज आइडेंटिटी। ओके, जब कोई नंबर में एडिटिव इनवर्स ऐड करते हैं तो हमेशा आंसर क्या आता है, एडिटिव आइडेंटिटी। ओके, एडिटिव आइडेंटिटी इज जीरो। ओके, हेंस अभी इसको हमने इक्वेशन में पढ़ा है, इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है। ओके, इक्वेशन में हमने इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है पढ़ा है। क्या करते हैं हम, जो नंबर है उसको राइट साइड पे लेकर जाते हैं, यानी कि क्या, यहाँ पे वेरिएबल ही रहेगा, x इज इक्वल टू 0 माइनस 18। ओके, अब 0 में माइनस 18 जाने के बाद में आंसर कितना आता है, माइनस 18। ओके, यानी कि क्या, x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 18। दिस इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 18। ओके, हेंस additive inverse of 18 is minus 18। ओके, दिस इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 18। अभी आपको चेक करना है तो चेक भी कर सकते हैं। लेट सपोज मैंने क्या किया, 18 में माइनस 18 ऐड किया। ओके, 18 प्लस माइनस 18। ओके, अब यहाँ पे मैंने बताया था कि कोई नंबर का साइन, पहले वाला नंबर का साइन चेंज है। ओके, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। ओके, तो क्या करना है, पहले दोनों नंबर में पहले क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, और जो बड़ा नंबर है उसके हिसाब से साइन देना है। अब यहाँ पे 18 सेम है तो उन दोनों में कितना आएगा, 18 माइनस 18 इज इक्वल टू 0। ओके, आपको आंसर मिल गया। ओके, बिकॉज 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी। दिस इज द मेथड टू फाइंड द एडिटिव इनवर्स। ओके, नाउ उसके बाद में हम नेक्स्ट कोई दूसरा वाला एग्जांपल देखते हैं। दूसरा वाला एग्जांपल आपके बुक में से लेते हैं -72। ओके, -72
2. ओके, अभी इसका आपको एडिटिव आइडेंटिटी, वी डोंट नो अबाउट द एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स ऑफ -72. नाउ वी हैव कैलकुलेट द एडिटिव इनवर्स ऑफ -72. we know how to find the additive inverse. Okay, let's suppose additive inverse is x. let's suppose additive inverse is x. ओके, मैंने क्या मान लिया, एडिटिव इनवर्स x है. अब जब मैं एडिटिव इनवर्स इस -72 में ऐड करता हूँ तो आने वाला आंसर क्या होगा, एडिटिव आइडेंटिटी, यानी कि क्या, 0. हेंस -72 प्लस x इज इक्वल टू 0. 0 इज अ एडिटिव आइडेंटिटी. ओके, इसलिए जब -72 में कोई भी एक एडिटिव इनवर्स अपने जो माना है x वो जब ऐड करेंगे तो आने वाला आंसर क्या होगा, हमेशा एडिटिव आइडेंटिटी. ओके, हेंस अभी इसको सॉल्व कैसे करना है, 72 इज नेगेटिव ऑन अ लेफ्ट साइड, देन इट्स टेकन इन अ राइट साइड, देन द साइन ऑफ 72 is changed. Okay, hence x is equal to 0 plus 72. Okay, here answer is 72. Okay, this is the additive inverse of -72. Okay, because -72 में अगर 72 ऐड किया जाए तो आने वाला आंसर कितना होगा, 0 ही होगा. यहाँ पे देखो -72 प्लस 72 तो कितना आएगा, 0. Okay, this is the additive identity and this is the method to find the additive inverse of given numbers. Okay, इसमें याद क्या रखना है, मेथड कैसे फाइंड आउट करनी है. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी चीज है, जो आप लेफ्ट साइड यानी कि सॉरी राइट साइड पे जो भी नंबर लेंगे वो क्या होगा, हमेशा एडिटिव आइडेंटिटी. ओके, now properties of subtraction of integer. Properties of subtraction of an integer. Okay, जैसे हमने एडिशन की प्रॉपर्टी देखी इंटीजर की, वैसे आपको किसकी प्रॉपर्टी देखनी है, सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी देखनी है. ओके, नाउ फर्स्ट नंबर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी. क्लोजर प्रॉपर्टी डज नॉट सेटिस्फाई फर्स्ट वन क्लोजर. प्रॉपर्टी. ओके, व्हाट इज द क्लोजर प्रॉपर्टी. एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है, लेट्स सपोज ए और बी दोनों इंटीजर है तो उनकी एडिशन भी क्या होगी, इंटीजर होगी. दिस इज द क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. उसी तरह लेट्स सपोज ए और बी दोनों भी इंटीजर है तो उनकी सब्ट्रैक्शन भी क्या होगी, इंटीजर ही होगी. ओके, दिस इज द क्लोजर प्रॉपर्टी. क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई सब्ट्रैक्शन, सेटिस्फाई क्लोजर प्रॉपर्टी. व्हाट इज द क्लोजर प्रॉपर्टी, if a and b are an integer, if a and b are an integer, then a minus b is also an integer. Okay, इज एन आल्सो इंटीजर. यानी कि क्या, लेट्स सपोज मैंने ए और बी दो इंटीजर लिए, दो इंटीजर की भी सब्ट्रैक्शन इंटीजर ही आएगी. ओके, उसके अलावा दूसरी कोई नहीं आ सकती. यानी दो इंटीजर है, लेट्स सपोज मैंने 5 लिया और 3 लिया, 5 और 3 की सब्ट्रैक्शन ली तो आंसर 2 ही आएगा. ओके, यानी 2 इज अ इंटीजर. ओके, द एग्जांपल फर्स्ट नंबर एग्जांपल, लेट 5 और 7. 5 और 7 क्या है, इंटीजर. ओके, दिस इज द पॉजिटिव इंटीजर एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ दिस इंटीजर 7 minus 5 इज इक्वल टू 2 एंड 2 इज आल्सो इंटीजर. ओके, या आपने दूसरे तरीके से किया 5 minus 7 तो आंसर सिर्फ चेंज हो जाएगा.
सिर्फ चेंज क्या होगा, यहाँ पर -2 आएगा और -2 भी क्या है, इंटीजर। दिस इज द पॉजिटिव इंटीजर, दिस इज द नेगेटिव इंटीजर, ओके, बट इट इज द टाइप्स ऑफ इंटीजर। यानी कि क्या, कोई भी दो इंटीजर नंबर लिए जाए और दोनों इंटीजर की सब्ट्रैक्शन की जाए तो आने वाला आंसर भी क्या होगा, इंटीजर होगा, ओके। एक तो पॉजिटिव होगा या एक तो नेगेटिव होगा, ओके, बट वो हमेशा क्या होगा, इंटीजर होगा, ओके। हेंस क्लोजर प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन satisfy closure property, okay, this is the first number property of integer, subtraction of integer, okay. Now next one, commutative property does not satisfy subtraction, does not satisfy commutative property, okay. What is the commutative property in addition? यानी कि क्या, लेट सपोज हमने क्या किया, दो इंटीजर लिए, दो इंटीजर के एडिशन ली, तो उनसे जो आने वाला, जो हमने एडिशन में फर्स्ट वाला इंटीजर लिया है, अगर उसकी पोजीशन भी चेंज की जाए तो भी एडिशन में उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। यानी कि क्या, अगर पहले वाला सेकंड लिया तो भी एडिशन का आंसर जितना आएगा उतना ही, पहले लिया तो जितना आएगा उतना ही एडिशन होगा, ओके। यानी कि क्या, उनकी पोजीशन चेंज होने पर भी आंसर में चेंज नहीं होगा, कब, जब एडिशन होती है तब, बट सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं होता है, ओके। हेंस सब्ट्रैक्शन डज नॉट ओबे द कम्यूटेटिव लॉ, ओके। सेकंड नंबर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव property, subtraction does not obey commutative property, subtraction does not obey commutative property, ओके। उसके आपने क्या लिखा है, सब्ट्रैक्शन डज नॉट ओबे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ओके। यानी कि क्या, सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती। हमने एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखा है, एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, a प्लस बी, उसका आंसर जितना होगा उतना ही b प्लस a का आंसर होगा। यानी कि क्या, उनकी पोजीशन भी चेंज की जाए तो भी कोई आंसर में चेंज नहीं होता है, बट सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं होता है, सब्ट्रैक्शन में आंसर चेंज होता है। उसका काउंटर एग्जांपल देना पड़ेगा, आपको एक एग्जांपल देना पड़ेगा, उसको हम बोलते हैं काउंटर एग्जांपल में कोई एक, कौन सा भी एक काउंटर एग्जांपल लो, काउंटर एग्जांपल यानी कि कौन सा भी एक एग्जांपल लो। मैंने लिया 5 और 3, 5 एंड 3 which are integer, अब उनकी मैंने क्या लिया, पहले 5 माइनस 3, कितना आएगा आंसर, 2, ओके, फर्स्ट वन, इसको मैंने फर्स्ट नंबर दिया। उसके बाद में क्या किया, मैंने पोजीशन चेंज की, ओके, 3 माइनस 5। अब यहाँ पे इन दोनों नंबर में सब्ट्रैक्शन ही करनी है, यहाँ पे 5 में से 3 जाने के बाद 2 ही आता है, अब 3 में से 5 जाने के बाद में 2 ही आएगा, बट साइन कौन से नंबर का होगा, बड़े वाले नंबर का होगा, ओके। यहाँ पे हमने बड़े नंबर का ही साइन दिया है, यानी कि ग्रेटर नंबर का ही साइन दिया है। यहाँ पे ग्रेटर नंबर का साइन कौन सा है, प्लस है, हमने कल ही पढ़ा था। अगर यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो यहाँ पे कौन सा साइन होता है, प्लस साइन होता है, ओके। 5 का साइन प्लस है तो 2 का साइन भी प्लस होगा, ओके। 3 माइनस 5, ओके। अब यहाँ पे 5 का साइन कौन सा है, निगेटिव है, तो आंसर कितना आएगा, -2, ओके। गिव एज नंबर सेकंड, ओके, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, अब यहाँ पे देखो, फर्स्ट एंड सेकंड में देखो, इन दोनों का आंसर सेम है, -2 के कभी प्लस 2 के बराबर होता है। रियल लाइन में देखो, रियल लाइन में 0 के राइट साइड पे 2 नंबर की पोजीशन पे 2 आता है, और -2 कब आता है, 2 नंबर की पोजीशन पे लेफ्ट साइड में, ओके। यहाँ पे अगर हमने सेंटर पे 0 लिया तो पॉजिटिव 2 कब आता है, राइट साइड में, और -2 कब आता है, कहाँ पे आता है, लेफ्ट साइड में। तो उन दोनों के आंसर इक्वल है क्या, नहीं है, आंसर इक्वल नहीं है, इसकी वजह से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही, ओके। फ्रॉम 1 एंड 2, 5 माइनस 3 does not equal to 3 minus 5, okay. Hence commutative property does not obey, hence commutative property does not obey, okay.
दिस इज द मेथड टू फाइंड द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, लेट्स सपोज हमने यहाँ पे एडिशन की। ओके, हमने अगर यहाँ पे एडिशन ली होती, लेट्स सपोज हमने यहाँ पे एडिशन की, 5 + 3 कितना आता, 8 आता, और 5 + 3 वो भी कितना आता, 8, और वो दोनों पे आंसर क्या है, प्लस है, तो उसके हिसाब से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में क्या होती है, सेटिस्फाई होती है, पर सब्ट्रैक्शन में सेटिस्फाई नहीं होती। ओके, नाउ नेक्स्ट नंबर प्रॉपर्टी एसोसिएटिव। नेक्स्ट नंबर प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव थर्ड नंबर प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके, सिमिलरली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सब्ट्रैक्शन में सेटिस्फाई नहीं होती। ओके, द सब्ट्रैक्शन ऑफ एन इंटीजर डज नॉट सेटिस्फाई या डज नॉट ओबे द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके, द सब्ट्रैक्शन of an integer does not satisfy, does not obey associative property। ओके, यानी कि क्या, जैसे हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखी उसी तरह सब्ट्रैक्शन ऑफ एन इंटीजर डज नॉट ओबे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यानी कि क्या, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में भी ओबे नहीं की जाती। और उसका काउंटर एग्जांपल लेट्स सपोज हमने कौन से नंबर दिए, 3। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमेशा कितने नंबर आते हैं, 3 नंबर आते हैं। ओके, हमने लिया 7, हमने लिया 7, 5, 3। ओके, बिलोंग्स टू इंटीजर। ओके, अब यहाँ इनमें फर्स्ट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, फर्स्ट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम कैलकुलेट करते हैं, 7 माइनस इन ब्रैकेट 5 - 3। ओके, हियर 5 में से 3 जाने के बाद में आंसर कितना आता है, 2। ओके, 7 - 2 आंसर इज 5। ओके, गिव एज 1 नंबर्स। ओके, अभी आपका आंसर कितना आ गया, आंसर कितना आ गया, 5। ओके, नाउ नेक्स्ट 7 - 5 इन फर्स्ट ब्रैकेट 5 - 3। ओके, हमने क्या किया, जो सेकंड वाले 2 नंबर है वो ब्रैकेट में लिए, अब मैंने फर्स्ट वाले 2 नंबर ब्रैकेट में लिए। ओके, यहाँ पे 7 में से 5 जाने के बाद में आंसर कितना आता है, 2 - 3, तो कितना आएगा, 2 में से 3 जाने के बाद -1। ओके, अब यहाँ पे देखो +5 और -1 ये दोनों इक्वल है क्या, नहीं है, यानी कि क्या, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डज नॉट सेटिस्फाई इन अ सब्ट्रैक्शन। ओके, समझ में आया, यानी कि क्या, 7 - 5 - 3 does not equals to 7 - 5 - 3। okay, hence associative property does not obey in subtraction। ओके, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डज नॉट ओबे इन सब्ट्रैक्शन। लेट्स सपोज हमने यहाँ पे एडिशन ली होती तो एडिशन डेफिनेटली सेटिस्फाई हो जाती। ओके, यहाँ पे देखो 5 + 3 कितना होता, 8, 8 + 7 कितना होता, 15। ओके, यहाँ पे आंसर डायरेक्ट, यहाँ पे आंसर कौन सा कितना आता, 15। ओके, ले अभी यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी आंसर 15 आएगा। 7 + 5 कितना होता, 12, 12 + 3 कितना आता, 15। ओके, यानी कि क्या, एडिशन में जिसकी पोजीशन भी बार बार चेंज की जाए या पोजीशन हमेशा चेंज करने पर भी आंसर में कोई गलत नहीं होता है, आंसर हमेशा सेम आता है, तो यानी कि क्या हो जाएगा, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, यानी कि क्या, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन में सेटिस्फाई होती है पर सब्ट्रैक्शन में नहीं होती। ओके, ये हमेशा याद रखना है। एडिशन में सभी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई की जाती है
बट सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती। ओके, अब उसके ऊपर जो एग्जांपल है वो एग्जांपल आपको सॉल्व करने हैं और उसके हिसाब से प्रैक्टिस सेट एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करना है और उसके ऊपर जो भी क्वेश्चन या जो भी सॉल्व नहीं होते उनको मुझे व्हाट्सअप करना है। ओके।